Assalamu alaikum. In this session, we are going to discuss few important things, and all of them are related to the concept of international trade. Firstly, we are going to discuss that all those developing countries where the policy of import substitution industrialization has been followed, what type of good things and bad things have happened. So in terms of the overall process of development, we will see that whether they have the countries have managed to achieve their goals by following this policy of import substitution, or they experience certain issues or certain problems that contributed in slowing down the process of development taking place in those countries. The next thing I'm going to discuss with you is the difference between the nominal rate of protection and the effective rate of protection. Then I will be discussing with you the situation when the countries decide to devalue or overvalue their currencies, what type of situations are there when they go for this following the policies of devaluation, or they decide to overvalue their local currency or the domestic currency in order to foresee or take certain advantages in the international market. And in the end, we are going to discuss a case study on Taiwan. So I will be discussing the various types of things or the strategies and the policies that have been followed by Taiwan over the last 30 to 40 years that led to a huge success of this particular country, that the development economists were forced to say or consider Taiwan as the development miracle that has happened, because we need to see that prior to almost like before 30 to 40 years, when you look at the economy of this country, we see that it was categorized as a low-income country, but now it has moved over to a high-income classification, and it is considered to be a high-income country now. So within a very relatively short span of time, it has managed to considerably move from a low status to a high income and economic status. So it is important to see that what type of different strategies have been followed. And the reason behind discussing Taiwan's success story in a session when we are talking about international trade and its impact on the development of an economy is concerned, we see that the major factors that contributed toward this magnanimous and huge development of Taiwan is concerned. Export promotion strategy is one of the major characteristic or one of the major player that is behind this huge success of this particular part of the world. So these are the few things we are going to discuss in this session. So firstly, I'm going to elaborate or discuss that when we look at the economic performance of the developing countries in the world, where the policy of import substitution has been followed, we observe that whatever protected industries are concerned in these countries, we mostly see that most of them became inefficient and cost ineffective, that some sort of incentives and facilities and were provided to the development to these industries for the development of that particular sector in the developing countries. But because of this overprotection, instead of becoming efficient or in utilizing this benefit or advantage that was provided to these industries, we see that a lot of inefficiencies and cost ineffectiveness was there, and that led to, instead of taking the industrial sector in these countries in an upward trend, we see that they show a dip or a downward trend instead, because of these extensive overprotection of this particular setup. Another important thing which we observe in this context is, as long as this providing different types of incentives for the promotion and for the development of the local industry or the domestic industrial sector is concerned, we see that most of the developing countries, the biggest benefit or the larger benefit went to the foreign companies or the multinational corporations or the foreigners who invested
in lieu of these incentives that were being provided for the development of a certain sector in a developing country. So the foreigners or the foreign companies or the foreign investors started investing in those areas, and a major proportion of the overall benefit was taken out of the country by these foreigners to their home countries. So we see that overall in the long run, as long as the effectiveness of the import substitution industrialization policy is concerned in the context of a developing country, mostly the beneficiaries turned out to be either the foreigners or the rich class that was there located in that particular country. So another important thing which you observe is that since the subsidization or the subsidies were provided to the importation of the capital goods was provided for the development of the industrial sector in these developing countries, we saw that this trend of capital intensive industrialization has been observed in the developing countries instead of them being following the labor intensive type of industrialization, since it is very obvious to understand कि आप सब्सिडीज या इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कोई भी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी को या प्लांट को या इक्विपमेंट को अगर इंपोर्ट करेंगे तो हम आपके ऊपर कोई टैक्सेस वगैरह नहीं चार्ज करने जा रहे, और अगर आप फलां तरह की इंडस्ट्रियल सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं कोई भी डेवलपिंग कंट्री में, फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान, तो हम आपको टैक्स हॉलीडे देंगे फॉर द नेक्स्ट 5 years, नो टैक्सेस विल बी चार्ज्ड अपॉन यू, एंड जो आप अगर एक खास एरिया में जो हमने इंडस्ट्रियल एरिया डिफाइन किया है, अगर आप वहाँ अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने जा रहे हैं तो हम आपको सॉफ्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लोन्स भी एक्सटेंड करने जा रहे हैं, एंड दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स. सो उसमें क्या है कि व्हेन आप उनको रिलैक्स कर रहे हैं टैरिफ्स के ऊपर, इंपोर्ट ड्यूटीज को हटा के आप बोल रहे हैं कोई भी मटीरियल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको इनकरेज कर रहे हैं टू सेटअप द इंडस्ट्रियल सेटअप, तो दे विल मोस्टली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि दे इंपोर्ट जो मशीनरी प्लांट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री को इंपोर्ट किया जाता है इन बेनिफिट्स को अवेल करते हुए, तो वहाँ से जो फोकस आ जाती है दैट इज मोर ऑन द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियल सेटअप. चूँकि आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो लेबर इंटेंसिव मशीनरी को या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को आप इंपोर्ट नहीं करते, तो उससे क्या है कि आपके जो डेवलपिंग कंट्री के अंदर ऑल्दो वहाँ लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड टेक प्लेस, इंस्टेड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि वहाँ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियल सेक्टर इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इन द लॉन्ग रन वी सी दैट देन देर आर इशूज, प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट. वहाँ जो आपको पेमेंट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि फिर अगैन for some basic things which you have to import, और जो आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव एंड दे बिकम एक्सपेंसिव ऑल्सो. जो आपकी लोअर लेवल ऑफ इनकम वाली क्लास है या मिडिल इनकम क्लास है, दैट finds it hard to afford those things which are being manufactured in your country, and then there are issues with the balance of payment, with the overall development process of your country. Another important thing that has been observed in this context is the concept of overvalued exchange rate. So, हमने देखा कि जो developing countries हैं वहाँ आप अपने import substitution industrialization को facilitate करने की वजह से exchange rate को overvalue कर देते हैं, और जब आप overvalue करते हैं तो उससे आपके जो imports हैं वो तो सस्ते हो जाते हैं, मगर जो आप imported material को या imported plant को या imported machinery को लेके आ रहे हैं अपने industrial setup को grow करने के वास्ते, that becomes cheaper. But because of this overvaluation of the exchange rate, जो आपकी exports हैं, they become relatively expensive, and the foreigners or the foreign buyer, that he or she finds it hard to buy the expensive products which of your country which you have exported to the international market, और जो आपने overvalue रखा हुआ है अपना overvalued exchange rate, जिसकी वजह से exports आपके expensive हो जाते हैं और जिसकी वजह से फिर आपका फिर balance of payment ख़राब हो जाएगा, और आपके जो revenues हैं which you can earn from the international market because of this price increase due to overvaluation
exchange rate, that is going to be problematic, और वो वहाँ से आपको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ते हैं. और आप ओवर वैल्यूएशन के पीछे आर्ग्यूमेंट क्या है कि आपने इसलिए ओवर वैल्यू करा हुआ है अपना एक्सचेंज रेट कि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हम ग्रो करने के लिए या उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम एक्सचेंज रेट को हमने ओवर वैल्यू किया है. सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज concept of self-reliance is concerned. So when you go for this import substitution industrialization, the idea is to become self-reliant in the production of all the different types of manufactured items which are needed by the domestic people, the local nationals living in a country, if the particularly अगर कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है. सो हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस देर आर दीज रिजिडिटीज एंड इनएफिशिएंसीज इन दिस प्रोसेस, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन. वी रेयरली सी दैट इन द रियल वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री बिकम सेल्फ रिलायंट कंप्लीटली, और वो इस काबिल हो जाते हैं कि अपने मैन्युफैक्चर्ड आइटम को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना सफिशिएंटली लार्ज लेवल के ऊपर ग्रो कर लें कि वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहे इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर. ऐसा वाला लेवल अचीव नहीं होता है डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री. सो मैंने अभी टर्म यूज करा था ओवर वैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट. सो आई थॉट इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वैल्यूएशन एक्सचेंज रेट. सो अगर हम ये देखें कि हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और सप्लाई ऑफ आर करेंसी है, उसकी वजह से जो फ्री मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट इस्टेब्लिश हुआ है, अगर वो एक सर्टन वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इफ द फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट, मैं एग्जांपल कोट करने जा रही हूँ, इन केस ऑफ पाकिस्तानी करेंसी PKR जो है अगर डॉलर के इक्विवेलेंट है मार्केट के अंदर, सपोज 20 रुपए का $1 है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर ये सोचे कि अगर हम ओपन मार्केट वाला एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं तो द लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने इंपोर्ट करनी है मशीनरी को या प्लांट को मार्केट से, ही विल फाइंड इट हार्ड to pay the money for that machinery for this by using this particular exchange rate जो अभी मैंने बोला 20 to 1 का. तो उसको लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, दे ओवर वैल्यू द डोमेस्टिक करेंसी और वो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट डिफाइन कर देते हैं, जिसमें लेट्स से मैंने अभी बोला फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट था 20 रुपीज फॉर $1. तो उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने बोला इट इज़ नॉट 20 रुपीज फॉर $1, हम आपको अश्योर करते हैं ऑफिशियल एक्सचेंज रेट $10 रुपीज फॉर $1. सो 10:1 का ऑफिशियल एक्सचेंज रेट डिफाइन कर दिया. सो अभी क्या हुआ, मैंने अभी आपको बोला कि फ्री मार्केट में जो एक्सचेंज रेट थी दैट वाज 20 रुपए का $1. ऑफिशियल एक्सचेंज रेट आपने देखा, हमने भी लिया बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग, जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन बी कंसिडर एज एन आर्ग्यूमेंट कि सरकारी तौर पे जो अनाउंस की गई एक्सचेंज रेट दैट वाज 10 रुपीज का $1. सो अभी आपने क्या किया, आपने आर्टिफिशियली अपने करेंसी को ओवर वैल्यू किया है. और इस ओवर वैल्यूएशन से क्या होगा कि जब आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो नेचुरली आपको आपका जो लोकल जो इन्वेस्टर है जिसने इंपोर्ट किया है कोई भी मटेरियल को या मशीनरी को, उसने जब पेमेंट करनी है तो ही विल हैव टू पे लेस, उसको चीप लगने जा रहा है importation of this material, or this has been basically developed, this particular thing has been developed to facilitate the local investor. लेकिन जो आपने इस ओवर वैल्यूएशन से आपने जो एक्सपोर्ट करे हैं उसमें अगर फ्री मार्केट के ऊपर पेमेंट करेगा इंडिविजुअल हु इज सिटिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट और आपकी एक्सपोर्टेड मटेरियल को बाय करने जा रहा है, तो अगर फ्री मार्केट पे बाय करेगा तो नेचुरली ही विल हैव टू पे लेस. बट नाउ अगर जो आपने ओवर वैल्यूएशन करके एक्सचेंज रेट ऑफिशियल डिफाइन किया है 10:1 का, उसके ऊपर अगर आप एक्सचेंज रेट लगाएंगे तो आपको रिलेटिवली ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द रेशियोज दैट इफ, जैसे अभी मैंने बोला फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट है तो दैट इज, दिस इज द स्टेट बैंक डिफाइंड ऑफिशियल एक्सचेंज रेट.
10:1, इसका मतलब दैट $1 बराबर है पाकिस्तानी रुपी 10 के, right? But the free market rate was supposed, and this is always established by considering the demand and supply forces. So जितने लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट में हमारा करेंसी को डिमांड करा है और जितना सप्लाई हो रहा है उसकी इंटरेक्शन से आपकी जो फ्री मार्केट की एक्सचेंज रेट इस्टेब्लिश होती है. सो आपने बोला दैट वाज PKR 20 rupees is equivalent to $1. So if we look at the international market, इसका मतलब कि अगर हम 10:1 वाली एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं तो ₹1 की चीज को खरीदने के लिए, if the price in the local currency of a certain product is ₹1, the buyer in the international market will have to pay 10 cents. अगर हम ये वाली एक्सचेंज रेट को ऑब्जर्व करते हैं तो इसका मतलब that if the price of a certain product, locally produced product, is ₹1, उसको बाय करने के वास्ते he will have to, the international buyer will have to pay 5 cents. So you saw that कि जब ऑफिशियल एक्सचेंज रेट इज ओवर वैल्यूड तो जो फॉरेन बायर है ही हैज टू पे मोर मनी एज कंपेयर टू द फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट इफ इट इज determined on the basis of the demand and supply forces और की इंटरेक्शन से. और अगर ओवर वैल्यूएशन नहीं है, हम इसको कंसिडर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है ₹1 के अगेंस्ट पे कर रहा है आपको इंटरनेशनल बायर, वो कम है एज कंपेयर टू व्हाट ही विल हैव टू पे अगर आपका ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है जैसे हम ऑफिशियल एक्सचेंज रेट देखते हैं. सो अगैन व्हेन यू लुक एट द एक्सचेंज रेट डिफाइंड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो आपको हमेशा उसमें ₹1-2 का फ़र्क देखने को मिलता है. सो बेसिकली दिस इज स्ट्रैटेजाइज्ड ताकि जो फ्लक्चुएशंस हैं उससे या रिस्क से हटाने के लिए या जो ज़्यादा रिलेटिव मूवमेंट को से फ्लक्चुएशन से जो इन्वेस्टर है या जो पार्टिसिपेंट है ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड उसको प्रोवाइड करने के लिए कंफर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा एक आपको ऑफिशियल एक्सचेंज रेट डिफाइन करती है, विच वी ऑलवेज सी इज स्लाइटली different from the free market exchange rate, and we observe that हमें वहाँ हल्का सा ट्रेंड हमेशा देखने को मिलता है ओवर वैल्यूएशन का. The next thing which I am going to discuss with you is the concepts of the nominal rate of protection and the effective rate of protection. So nominal rate of protection को समझना तो relatively आसान है, मगर एज लॉन्ग एज इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन इज कंसर्न वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी. सो इसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेने जा रही हूँ आपको बताने के लिए कि इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन हम कैसे निकालते हैं या उसका क्या मतलब होता है. सो एज लॉन्ग एज द नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन इज कंसर्न, रेट ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब क्या कि आपने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जाके डिसाइड किया है कि हमें हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है या इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट को आपने बेसिस बनाया है कि हमें जो हमारा लोकल इंडस्ट्रियल सेक्टर है या लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है इंटरनेशनल मार्केट से. सो आपने ये तो डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू इनकरेज द लोकल इंडस्ट्री एज वेल. और उसके वास्ते आपने डिसाइड किया कि हमें कुछ प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करना चाहिए. और उसमें जो सबसे आसान और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन के प्रोवाइड करने के वास्ते, दैट इज इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स. सो टैरिफ वो टैक्स है जो कि आप इंपोर्टेड मटेरियल के ऊपर लेवी करते हैं या चार्ज करते हैं. सो इसके अलावा प्रोटेक्शन के हमारे पास गवर्नमेंट के पास मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं जिसमें अक्सर कोटा लगा दिया जाता है या लाइसेंस दिया जाता है कि आप क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं और सिर्फ उन लोगों को इजाज़त होती है आपके साथ ट्रेड करने के लिए जिनको आपने लाइसेंस इशू की हुई होती है. सो इसके अलावा हमारे पास देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट अकाउंट फॉर द प्रोटेक्शन विच इज फॉलोड and implemented by the government in order to protect the domestic industrial sector. So जो tariff का
क्या इम्पोजिशन की वजह से क्या फ़र्क आता है, उसमें हम उसको देखने जा रहे हैं। और उसमें दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एज लॉन्ग एज द टैरिफ इज़ कंसर्न। वन इज़ द नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि आपने नॉमिनल टैरिफ लगाया, उसका क्या मतलब, और इफेक्टिव रेट ऑफ टैरिफ या इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन जो आपने लगाई है, जिससे इफेक्टिवली इन द ट्रू सेंस, इन द रियल टर्म्स, आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको कितना एडवांटेज मिला है ग्रो करने के लिए। तो दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो सबसे पहली बात, सपोज हमने कहा कि आप, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कोई भी प्रोडक्ट का, हम क्लोथिंग लेते हैं इसके लिए। सो हमने बोला दैट इफ द प्राइस ऑफ क्लोथिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्लोथिंग का एक सर्टन यूनिट ले दिया हमने, मसलन हमने कहा 100 यार्ड्स क्लोथिंग का हमने यूनिट डिफाइन किया। सो हमने बोला प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ 100 यार्ड्स ऑफ क्लोथिंग इज गिवन एज $100। सो अगर गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसको अगर इंपोर्ट करने जा रहे हैं और इसके ऊपर हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं 20% का, तो जो डोमेस्टिक मार्केट होगी, दिस इज द इंटरनेशनल मार्केट प्राइस विच इज गिवन एज $100। आपने कहा जब हम हमारा बॉर्डर को क्रॉस करेगी ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करके, तो हम इसके ऊपर 20% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। सो इसका मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ 100 yards of cloth, it will be 100 plus 20% of 100। इसका मतलब कि आप जो लोकल प्राइस चार्ज करेंगे, that will become $120 of is going to be the domestic price of clothing। और ये जो आपने टैरिफ लगाई है 20%, that is considered to be or defined as the nominal रेट ऑफ टैरिफ, या हम इसको नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, मैंने अभी टर्म यूज करा इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, दिस इज समथिंग विच इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो हमने अभी जैसे बोला कि गवर्नमेंट ने डिफाइन किया कि अगर आप क्लोथिंग को इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में, दैट इज $100 फॉर अ सर्टन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग। और अगर आप मटेरियल इंपोर्ट करते हैं विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्लोथिंग, तो द प्राइस ऑफ दैट मटेरियल इज $60 इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसका मतलब कि अगर आप लोकल मार्केट में मटेरियल को इंपोर्ट करके, हम अभी कोई टैरिफ नहीं लगा रहे। सो हमने कहा कि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं जिसकी कीमत है $60, और हम अस्यूम कर रहे हैं कि अभी हम कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई फ्रेट चार्जर्स, कुछ भी इस तरह की इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ये कुछ भी हम अस्यूम कर रहे हैं, देयर आर नो सच कॉस्ट। सो हम जब मटेरियल $60 का इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम क्लोथ में वैल्यू एडिशन करके, क्लोथ में ट्रांसफर करके या प्रोड्यूस करके, या उसको उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसिंग लगा के हम जब मार्केट में उसको बेचेंगे, तो हम उस मार्केट में जाके क्लोथिंग को बेच सकते हैं $100 का। So this is the international market of clothing, and since no tariffs are being imposed in the first place, therefore the domestic price of clothing is also $100. मगर अगर आप material which is used for the manufacturing of clothing को import करते हैं, तो उसका international market और local market of that material, local market price of that material is also $60। तो आपके पास जो प्रोविजन है लोकल प्रोड्यूसर के पास कि वो मटेरियल को इंपोर्ट करे और उससे क्लोथिंग बना के मार्केट में बेचे, which can be available otherwise for $100। तो जो मार्जिन उसके पास है वैल्यू एडिशन का, वैल्यू एडिशन that can be added or contributed by the local producer if he decides to import the material and then manufacture clothing will be $40। so ये उसका पास प्रोविजन है अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालने का, या कोई और रेंट्स वगैरह पे करने का,
या कुछ भी, लेकिन हम अभी assume कर रहे हैं there are no tariffs and as long as the transportation cost or the freight charges, insurance expenses are concerned जो कि import करने के लिए आपको देने पड़ते हैं, हम उनको account for करें कि we are assuming that they are no, we don't have to incur those expenses. वो ऐसा कोई expense अभी नहीं है. Just to illustrate. So from this we saw no tariff is being imposed right now, and the value addition share by the local producer is $40 because local market or international market में price of cloth is $100 whereas material costs $60. Now let's talk about situation number 2 जिसमें हमने assume करे हैं कि आप की जो गवर्नमेंट है उसने टैरिफ इम्पोज करी है, उसने बोला अगर क्लोथिंग आप इंपोर्ट करने जा रहे तो हम आपके ऊपर 20% टैक्स डाल रहे, राइट, एंड इफ यू आर गोइंग टू इंपोर्ट द मटेरियल देन वी आर गोइंग टू पुट a 10% tax on the importation of material. So अगर हम क्लोथिंग को इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में तो $100 प्राइस है क्लोथिंग का, मगर जब डोमेस्टिक प्राइस लेंगे क्लोथिंग का, आपने इंपोर्ट किया उसके ऊपर 20% टैक्स आपने दिया वैल्यू ऑफ द क्लोथिंग इंपोर्टेड के ऊपर, तो आपको जो यूनिट ऑफ सर्टेन यूनिट ऑफ क्लोथिंग का प्राइस डोमेस्टिक प्राइस चार्ज करने को मिलेगा, दैट विल बी ऑफ क्लोथिंग is equivalent to $120. But if you are going to import the material which is required for the manufacturing of clothing, वहाँ गवर्नमेंट ने कहा हम आपके ऊपर 10% टैरिफ लगा रहे, तो इसका मतलब कि जो मटेरियल है आफ्टर imposition of 10% tariff, the price in the local market or the domestic market of the imported material will then become 60. तो उसकी कीमत थी उसमें 10% of 60 will be added, यानी कि $6 ऐड हो जाएगी, तो आपको जो रॉ मटेरियल अब पड़ेगा that would be of $66. So अभी जो मार्केट प्राइस है दैट इज 120 इंपोर्टेड मटेरियल का. सो जो आपका लोकल प्रोड्यूसर है उसके पास वैल्यू एडिशन का मार्जिन नाउ इज 120 माइनस 66 इज इक्वल टू $54. Whereas इस टैरिफ के इम्पोज करने से पहले वैल्यू एडिशन का मार्जिन विद द लोकल प्रोड्यूसर वाज $40. सो अगर हम इन दोनों की डिफरेंस निकालें और रेशो देखें कि अभी उसको कितना एडवांटेज मिला है, उसका वैल्यू एडिशन का जो शेयर है वो इस टैरिफ के इम्पोज होने की वजह से कितना बढ़ गया है, तो दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड कि हम देख सकते हैं कि इफ दैट टाइप ऑफ डिफरेंस इज अकाउंटेड फॉर, तो हमने देखा कि इट इज 14 जो कि मैंने निकाला है 54 माइनस 40, या इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट दिस डाउन एज 54 minus 40 divided by 40. So this is the initial amount of value addition that was there with the domestic producer. So 54 minus 40 is 14 divided by 40 turns out to be 0.35, और अगर हम इसको percentage form में देखें तो it turns out to be 35%. So आपने देखा कि आपने जो nominal tariff लगाई थी that was 20%. But the effective tariff, your effective rate of protection that you eventually managed to give to your local producer was 35%. So, जो आपका value addition of the local producer that has gone up by 35%, whereas the imposed tariff जो कि हम nominal rate of protection भी बोल सकते हैं उसको, that is just 20%. So we saw that the nominal rate in this case is smaller as compared to the effective rate of protection. So अभी जो मैंने आपको 35% निकाल के दिया that is the effective rate of protection. और हम देखते हैं कि जब भी हम फर्क डालते हैं, जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया कि अगर आप रॉ मटेरियल को या मशीनरी को या इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको टैरिफ लगा के देती है जिसकी जो वैल्यू है वो स्मॉल है, और अगर आप मैन्युफैक्चर्ड आइटम को इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ है अगर वो हाई हो, तो इफ द डिफरेंस इज देयर इन द टैरिफ इम्पोज्ड ऑन द रॉ मटेरियल एंड द मैन्युफैक्चर्ड फाइनल कमोडिटी या फाइनल गुड के फॉर्म में जो आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं, अगर दोनों में फर्क है तो आपको फिर फर्क मिलेगा इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन में और नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन में. सो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन बेसिकली इज द इंक्रीज इन द extent of the value addition which you can make
वट एवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो अपने वैल्यू एडिशन के प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर सके पहले की निस्बत ज़्यादा, तो इसको हम बोलते हैं दैट यू आर लिविंग इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन. सो इफेक्टिवली यू आर गोइंग टू मैनेज द थिंग्स इन सच अ वे कि आपका जो लोकल प्रोड्यूसर है उसका जो वैल्यू एडिशन का जो प्रोपोर्शन है उसको आपने इंक्रीज करा है. सो दिस विल सर्टेनली हेल्प यू इन increasing the overall magnitude of the production or the share by the local manufacturer. So then मैंने अभी एक example के through दोनों को explain करने के लिए आपको कुछ information दिया. The thing which I am going to show you now are the formulas which we use in order to calculate the nominal tariff rate and the effective tariff rate. So अभी जो आपको सामने एक formula देखने को मिल रहा है, this particular formula is used to numerically measure the nominal tariff rate, and you can see the formula is small t, which is the nominal tariff rate, is equivalent to p prime minus p divided by p. So जिसमें p prime है, that is the price which is after imposition of tariff. जैसे मैंने अभी आपको इस example में बताया कि आपकी जो प्राइस थी बिफोर टैरिफ इट वाज $100 और आपने उसके ऊपर 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट के हिसाब से टैरिफ इम्पोज किया, तो आपका प्राइस विद टैरिफ वेंट अप फ्रॉम $100 टू $120. सो अगर आप नॉमिनल टैरिफ रेट यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर दिस एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 विल बी द नॉमिनल टैरिफ रेट. सो आपने क्या किया, आपने टैरिफ रेट इम्पोज करने के बाद वाली प्राइस में से टैरिफ रेट को इम्पोज किए कि बिना वाली प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया टैरिफ वाली प्राइस से, और फिर जो आपके पास डिफरेंस आएगी उसको आप डिवाइड करने जा रहे हैं विदाउट टैरिफ वाली प्राइस के. तो द वैल्यू विच यू विल ऑब्टेन इज विल बी ऑफ द नॉमिनल टैरिफ रेट. द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू शो यू इज द formula for the effective tariff rate, and again this is very simple. अभी हम with and without tariff price को account for नहीं करते. जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, हम value addition की बात कर रहे थे. तो as long as the effective tariff rate is concerned, effective tariff rate को represent किया गया है इस formula में जो अभी आप देखेंगे, that is represented by the letter G, और small g is given as equivalent to V prime minus V divided by V, where V prime is the value added per unit of output, which is there when you have implemented or added or levied the tariff, और जो small v है without a prime on it, that is the value added which is there without imposing or levying the tariff. So आपने with tariff value added amount में से without tariff वैल्यू एडेड अमाउंट को आपने सब्ट्रैक्ट किया, और जो आपके पास डिफरेंस आएगी इसको अगर आप विदाउट टैरिफ वैल्यू एडेड वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो द रेट विच यू विल गेट और द वैल्यू विच यू विल गेट विल बी द वैल्यू फॉर द इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन. एंड एज लॉन्ग एज द रियल कॉन्टेक्स्ट इज कंसर्न्ड, वी टुक द एग्जांपल टू सी हाउ द टू कॉन्सेप्ट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम one another. So particularly in the context of developing countries, where we see that strictly this particular strategy is followed, where the raw materials tariff is considered to be or is fixed at a lower level as compared to the tariff which is imposed on the manufactured items, you will always see that the effective rate of protection will be higher as compared to the nominal rate of protection. So यहाँ आपको nominal rate of protection 20% मिल रही थी, effective rate of protection turned out to be 35%. So जितना आप फर्क रखते हैं रॉ मटेरियल की टैरिफ के ऊपर और मैन्युफैक्चर्ड आइटम की टैरिफ पे, उतना ही बड़ा आपको इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट होती हुई नजर आएगी उन सिचुएशंस के अंदर. Now, if we look at this imposition of tariffs, या जो भी आप ट्रेड के ऊपर sanctions लगाते हैं, जिसमें आप कोई भी टैक्सेस टाइप ऑफ थिंग्स को इम्प्लीमेंट करें, जैसे मैंने अभी आपको टैरिफ के एग्जांपल दिया, तो इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. और उसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि व्हेन द गवर्नमेंट्स इम्पोज टैरिफ, दे आर एबल टू जनरेट सम रेवेन्यू बाय इम्पोजिंग टैरिफ. सो व्हाटएवर थिंग्स विल बी इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप
कभी भी लोअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर किसी भी इकोनॉमी को आप देखेंगे तो वो सेल्फ सफिशिएंट लेवल के ऊपर कभी भी अचीव नहीं कर सकती. देयर वुड बी 110 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो कि उनको चाहिए, और उसको डिमांड को सेटिस्फाई करने के वास्ते, कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, कंज्यूमर सेक्टर की जहाँ कंज्यूमर गुड्स इस्तेमाल होने जा रहे हैं उनके डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उनको वन वे और अनदर डिफरेंट तरह की चीज़ों को इंपोर्ट करना ही होता है. और जब वो इंपोर्ट करेंगे, आप उनके ऊपर टैक्सेस लेवी कर रहे हैं टैरिफ के फॉर्म में, तो आपको naturally you will be able to generate revenues. Sometimes we see that in a certain country, if they have imposed a lot of tariffs and other trade barriers in order to protect their domestic industry, and they try to bring in this difference in the prices also, so that people should start buying more of the locally produced products and less of the imported material or imported goods. We see that there have been certain instances in the real world where despite of these differences in the price, because of a certain mindset or a certain perception linked up with the imported stuff, or with a certain like if you belong to a certain high income class, they always find it more comfortable, or they take it as more fashionable that they keep on buying or the imported material even if the price is relatively higher. So as a consequence, the basic idea behind this bringing in the difference by imposing tariffs so that the local industry should get flourished gets wasted, because the large buyers or the major contributors of the total market demand keep on stuck with the imported materials consumption, and the local consumption is not there. So local production, locally produced goods consumption is not there, or if it is there, it is of a minimal level. So as a result, we see that the domestic industry doesn't get flourish, and the objectives are not achieved. So that is also there. But in the real world, it is therefore recommended that it is important for the countries, when they try to levy different types of tariffs, they need to look at the various demand and supply interactions of the different types of things, and they need to also look at the change in the consumption behaviors, whether it is possible to bring in some variations in the consumption behavior by promoting this idea of nationalism, or like they can tell the people to go for the locally produced goods, because they can rationalize that if they go for the locally produced goods more and more, they are going to facilitate the local people by reducing the disparities in the income distributions, and they will be able to help the other people that are considered to be less privileged and things like that. So these kinds of strategies and policies need to be implemented along with this concept of import substitution industrialization, or by protecting the local industry following this trade barriers such as tariffs. So the concept is that the basic idea behind the imposition of this particular strategy is that whatever strategy is being developed for a certain country, it needs to be developed wisely, and they need to look at the various intricacies that are linked up with a certain concept, and then they should go for such things. So as long as the infant industry argument is concerned, we see that as long as the overall developing countries are concerned, we don't see any big success of this particular concept of following the infant industry argument, where the protection is provided to the local industry so that it should get strengthened and develop and become self-sufficient, so that the government have to, because of this large growth of the local manufacturing sector, they eventually reduce the imported volume of the imported material, imported manufactured items. But we, as an exception, we see the success story of East Asian
countries where they managed to improve themselves from being the labor intensive countries to the capital intensive country, and then we saw that the transition in the industrial sector in these countries has taken place in such a nice way that initially they started producing the things that are required by the local market, and then they focused upon the international market also, and then they have very successfully managed to to satisfy the demand that exists in the international market, and they have kind of like tried to cater to that big, massive, unfulfilled or unsatisfied demand in the international market, and that helped them significantly in improving their economies in a much better way by generating a lot of money. A lot of profits have been generated, and as long as the industrial sector is concerned, it has also grown enormously in these countries. So I'm switching over to the next thing which I'm going to discuss with you, and that is the concept of foreign exchange rates, the exchange controls and the devaluation decisions. So there are four important things that need to be understood in this context. That exchange rate of a currency in terms of any foreign currency is always determined on the basis of the demand and supply interaction of that particular local currency. So as I just took the example of exchange rate between Pakistani currency, Pakistani rupee and the US dollar. So basically when we look at the market trends, the free market exchange rate, we see that the exchange rate is decided between any two currencies, is decided on the basis of the interaction of the demand for that currency and the supply of that currency. Now, then we saw another thing, that sometimes the central bank of a country intervenes and they also set up the official exchange rate. And this is mainly done in order to control the fluctuations that are associated with the value of the exchange rate in the international market. So in order to bring in some sort of feeling of stability, they intervene, and they always go for this declaration of official exchange rate, which in a way helps the foreign market or the international market as long as the stability of that particular currency is concerned. And it is important to bring in some feeling of stability, particularly when we are talking about the currency's value if the country is a developing country like Pakistan. So we see that often we see this particular terminology being used in the newspapers. The terminology which is extensively applied is the concept of devaluation, or the terminology of devaluation. So one may wonder कि devaluation का मतलब क्या होता है. So अगर हम ये देखें कि हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो कंट्रीज जो हैं वो अपने ऑफिशियल एक्सचेंज रेट को फ्री मार्केट का जो एक्सचेंज रेट है उससे डिविएट करके एक सर्टन एक्सचेंज रेट को ऑफिशियली डिफाइन करते हैं, एंड देन दे स्टे दैट वी आर गोइंग टू back this particular defined exchange rate. और अगर उसमें जैसे मैंने भी आपको बोला कि sometimes हम अपने infant industry argument को follow करते हुए या import substitution industrialization की principle को या policy को follow करते हुए अगर हम अपने जो exchange rate है उसको over value करके रखते हैं, जैसे मैंने भी आपको एक numerical illustration में दिखाया कि अगर जो free market थी उसमें exchange rate पाकिस्तानी रुपी का और यूएस डॉलर का था, सपोज $20 रुपीज फॉर $1, और दिस इज द फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सपोज, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिफाइन किया नहीं, हम आपको $1 के बदले में 20 रुपए की बजाय 10 रुपए देने जा रहे हैं. तो ऐसे के सिचुएशन में आपने बोला कि आपने ओवर वैल्यू कर दिया है अपनी करेंसी को, कि आपने वो असल में वर्थ थी 20 रुपए $1 के, लेकिन आपने उसको 10 रुपए का कर दिया है, डिफाइन कर दिया है. सो दिस इज कॉल्ड ओवर वैल्यूएशन. इसका रिवर्सल अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी वैल्यू, अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर रहे हैं. एंड दिस पर्टिकुलर डिवैल्यूएशन इज ऑलवेज डन कि आपका जो फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट है वो एक सर्टन लेवल पे बैठा हुआ था और आपने अपनी वैल्यू को कम, अपनी लोकल करेंसी की वैल्यू को कम करके एक ऑफिशियल एक्सचेंज रेट डिफाइन कर दिया. और दिस इज ऑलवेज followed in a situation where you believe that by doing this, naturally इससे क्या होगा, आपकी जो exports हैं वो cheap हो जाएंगी इंटरनेशनल मार्केट में. रिवर्सल है ओवर वैल्यूएशन का, और उससे आपकी जो exports हैं वो सस्ती हो जाएंगी
और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगी हो जाएंगी, तो आपका इससे फ़ायदा क्या पहुंचेगा कि एक्सपोर्ट्स के सस्ते होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो रेवेन्यूज़ हैं यू कैन अर्न मोर, बिकॉज अभी आपके एक्सपोर्ट डीवैल्यूएशन की वजह से चीपर लग रहे हैं इंटरनेशनल बायर को, तो आपकी जो रेवेन्यूज हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट दैट दे कैन गो अप, बट द कॉस्ट विच यू विल हैव टू पे इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन बाय डीवैल्यूइंग योर करेंसी इज के जो आपकी इंपोर्टेड मटेरियल है वो एक्सपेंसिव होने जा रही है, और उसके एक्सपेंसिव होने की वजह से जो आपका लोकल जो बायर है वो सफ़र करने जा रहा है। सो अगर हम एक ऐसी कंट्री के लिए डिसाइड करते हैं डीवैल्यूएशन में जहां इंपोर्टेड मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोर्टेड मटेरियल कम है, या एक्सपोर्ट की जो वॉल्यूम है वो कम है, या मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप प्राइमरी कमोडिटीज़ को या रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहां income elasticity या price elasticity of demand is considered to be very low, कि अगर आपने प्राइस को थोड़ा करके दिखाया है इंटरनेशनल मार्केट में डीवैल्यू किया आपने करेंसी को और प्राइस आपने रिड्यूस कर दिया, लेकिन आप बेच रहे थे क्या प्राइमरी कमोडिटी, और प्राइमरी कमोडिटी में हमने देखा कि लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, तो उस प्राइस के फॉल करने की वजह से आपकी जो डिमांड है उसमें कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट नहीं आता, बिकॉज आपने एक सर्टन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फूड आइटम्स लेनी है और वही लेने जा रहे हैं, और उसमें अगर प्राइस कमी देखने को मिल रही है फिर भी आप उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। आप का जो डे टू डे कंज्यूमेबल चीज़ें होते हैं, कुड बी द फूड आइटम्स मेजरली, उसमें अगर प्राइस फ्लक्चुएट करती है, नीचे की तरफ जाती है या ऊपर की तरफ जाती है, तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि बिकॉज ऑफ दिस लो वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका जो डिमांड है उसमें बड़े फ्लक्चुएशंस नहीं आते। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी लुक एट द मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स या ड्यूरेबल आइटम्स या इस तरह की कोई भी चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है या इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है वो आपको लार्ज देखने को मिलती है। सो वहाँ अगर आप प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो यू कैन हैव सम साइजेबल impact in terms of increase in the demand. So since if you are a developing country, you are primarily exporting the primary goods, reduction of price हुआ devaluation की वजह से no sizable impact will be there on the revenue earned by that country, क्योंकि जो elasticity of demand है that is considerably low for the primary goods. So it is therefore important to look at the overall magnitude of the things which you are importing, the things which you are exporting, the nature of the products which you are importing, the nature of the products which you are exporting before you get into this implementation of this strategy or policy of devaluation. So it can have positive impacts on the overall economy, it can have negative impacts on the overall economy, और ये काफ़ी disastrous भी हो सकती है. So it has to be really important to look at all the different types of intricacies that are associated or linked up with anything which you are planning to do, particularly as long as with the fixation of the value of your currency, या आप exchange rate को अगर आप disturb करने जा रहे हैं, change करने जा रहे हैं, variation लेके आने जा रहे हैं, तो you need to, the governments have to look at all the different types of things that are linked up with that. So the thing which I am moving on to is another term which is frequently used in the context of international trade and its impact on the development process in a developing country. उसमें हमारे पास दो तरह के लोग को हम discuss करते हैं. These individuals can be categorized as the trade optimists and the trade pessimists. So ट्रेड ऑप्टिमिस्ट वो लोग हैं जो कि प्रमोट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि जितना कंट्री नो मैटर अगर वो डेवलपिंग कंट्री है, इसके बावजूद अगर वो ओपन अप होती है इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड के लिए, वो पार्टिसिपेट करती है या अपने बाउंड्रीज को ओपन करती है ट्रांजैक्शंस के लिए, स्टूडेंट्स के एक्सचेंज के लिए, मनी के इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए ओपन अप करती है, या गुड्स के एंड सर्विसेज को के लिए अपने बॉर्डर्स को ओपन अप करती है फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, तो समहाउ वन वे और अनदर, एक तरह से नहीं तो दूसरे तरह से, कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई एडवांटेजियस सिचुएशन में वो चली जाती है, उसको कोई ना कोई बेनिफिट्स मिलते ही हैं, नो मैटर वो डेवलपिंग है या वो डेवलप कंट्री है. सो द ट्रेड ऑप्टिमिस्ट ऑलवेज एनकरेज कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज दे गिव द आर्ग्यूमेंट दैट जब आप ओपन अप करते हैं अपने बाउंड्रीज को फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, आप इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कंपटीशन के इंक्रीज करने की वजह से
आपके जो एफिशिएंसीज हैं वो बढ़ते हैं, जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है दैट गेट्स इम्प्रूव्ड एंड यू रीच अ हायर लेवल ऑफ इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट गेट्स मोर एफिशिएंट आल्सो। सो आपकी जो ज़्यादा बेहतर एडवांटेजियस सिचुएशन में आप चले जाते हैं। हाउएवर ऑन द अदर हैंड वी हैव गॉट दीज ट्रेड पेसिमिस्ट्स who say that if the developing countries open up for the international market, so then because इंटरनेशनल मार्केट में जो बड़े लेवल के कंपनीज बैठे हुए हैं, बड़े लेवल के कॉरपोरेशंस बैठे हुए हैं, उनका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, लर्निंग बाय डूइंग की वजह से वो एवरेज कॉस्ट उनका काफ़ी कम होता है और उस एवरेज कॉस्ट के कम होने की वजह से या उनके जो ज़्यादा प्रोडक्टिव एफिशिएंट जो उनके जो मैन पावर है या डिसीजन मेकर्स हैं या उनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने की वजह से अगर आप बॉर्डर को खोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के वास्ते डेवलपिंग कंट्री का, तो इट कैन रिजल्ट इन अ डिजास्टर फॉर द डेवलपिंग कंट्री बिकॉज आप जितने एफिशिएंट लेवल के ऊपर डेवलपिंग कंट्री में इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी कॉरपोरेशंस का प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, अगर वो आपके मार्केट में एंटर कर जाते हैं तो देन आपका जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो छोटे लेवल के ऊपर जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सिवियरली इफेक्ट होता है। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस जो डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए ओपनिंग अप एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड कैन बिकम very difficult to survive, or it becomes really very hard or difficult, or it turns out to be disadvantageous for that particular country, particularly in the context of the local supplier, local industrialist. तो अभी चूंकि वो इतना लेवल हाई लेवल के ऊपर डेवलप नहीं किया हुआ होता है जिसकी वजह से वो उनके साथ compete नहीं करता और वहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, एवरेज कॉस्ट नीचे जाने की वजह से, लर्निंग बाय डूइंग की वजह से, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांस सेटअप के साथ compete नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है या लोकल प्रोड्यूसर है वो सफ़र करता है और आपकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ख़राब हो सकती है। अनदर आर्ग्यूमेंट विच दे गिव in favor of not opening up for the international trade is that whenever you let these big multinational companies come and work or operate in your country and your country is a developing one, तो वो आपके जो मेजर बेनिफिट्स हैं, जो मेजर जो आप पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट्स लेते हैं, वो वापस अपनी कंट्री में ले जाते हैं instead of spending that money on the development or welfare of the people in that country. So therefore we see that these pessimists give their arguments कि हमें वहाँ टैरिफ के प्रोटेक्शन के टेक्निक्स लगाने चाहिए, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए ताकि हमारा जो लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो प्रोटेक्ट हो सके, वो फ्लरिश कर सके, वो ग्रो कर सके। सो टुगेदर वी सी दैट ओवरऑल एज लॉन्ग एज अ डेवलपिंग कंट्री इज कंसर्न, तो इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू सी कि जो ओवरऑल सिचुएशन है इन अ सर्टेन कंट्री उसको बहुत नाइसली अकाउंट फॉर करके, उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को अकाउंट फॉर करके, पीपल इफ द गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू गेट इनटू the international market, so they need to be very careful by looking at the strengths and the weaknesses of their domestic producer, of the domestic consumer, कि आप किस तरह के strategies को implement करने जा रहे हैं। So another important thing which needs to be mentioned in this context is that there are certain organizations which regulate the policies, define the policies, जो कि regulate करती है या influence करती है trade taking place in the international world में, जैसे WTO है। So we see that these type of organizations when they go for the policies, अभी तक हम WTO को काफ़ी के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म देखते हैं कि वो उसके जो भी पॉलिसीज़ होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज जो बहुत ज़्यादा वोकल है इन मेकिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड बाय WTO, वो सारे के सारे मेजॉरिटी पहले तो डेवलप नेशन से बिलोंग करते थे। अभी चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज की तादाद ज़्यादा हो गई है, therefore there have been this the people who from the developing countries have also started raising their voices कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनके जो पॉलिसीज़ जो भी WTO बनाती है या बना रही है उनको इस तरह का होना चाहिए कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के फेवर में जाए, ना कि उनको एक्सप्लॉयट करने के लिए बनाई जाएं। So these kinds of things are therefore important
to be accounted for when we look at the overall impact of international trade in either strengthening the process of development taking place in a developing country, or they can also operate in weakening the process or reducing the pace of development in a developing country. कि अगर आपने allow कर दिया trade को और सारे का सारा benefit जो भी trade activity हुआ उससे benefit चलेगी developed nations को या rich countries को या rich class को, तो then it would not be a beneficiary kind of a combination या कोई बहुत beneficial idea नहीं होगा developing country के लिए. So by considering these international trade organizations, international blocks जो कि trade blocks होती हैं जो कि regulate करती हैं trade को influence कर सकती हैं, ये सारे के सारे चीज़ों के अंदर अगर हम ये इन सारे organizations को या agreements के अंदर इस चीज़ के awareness को develop करा जाए कि डेवलपिंग कंट्री के वेलफेयर के लिए they need to look at this aspect also, and they need to strategize their policies in such a way that overall they should facilitate the development process in the developing countries by developing that type of trade activities that should be beneficial, not harmful for these countries. The overall process of development can certainly be expedited, और हम देख सकते हैं कि हम एक ऐसे दुनिया में की तरफ मूव कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में मूव कर सकते हैं जहां ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस कैन बी फेयरली बेटर एज कंपेयर टू व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउअडेज. थैंक यू.